جاتا ہے ہمارے اسکولوں میں. دینیات جانتے ہیں کس کا شعبہ ہے؟ دینیات یہ اہل حدیثوں کا شعبہ ہے, اہل حدیثوں کا. جب بچے تیسری چوتھی کلاس کے بعد کتابیں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اپنے عقائد اس میں گھسیڑ دیتے ہیں وہ. اب ہمارے بچے اپنے مزاروں پر جانا بند, ماں باپ کی قبروں پر جانا بند, قبرستان جانا بند, گھر میں فاتحہ بند کرا دیتے ہیں اسکولوں میں پڑھنے کے بعد. کیوں؟ انہیں دینیات سکھایا جا رہا ہے, انہیں وہ چیز نہیں دی جا رہی جو انہیں سیکھنا چاہیے, جو ان کے لیے بہتر ہے. ہمارے نور حسن بھائی یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, یہ کتنے مناظرے بیچارے کرتے رہتے ہیں دیوبندی وہابیوں سے. اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے اور ان کو ہمت و حوصلہ عطا فرمائے. یہ کتنے لوگوں کو ایسے جواب دیتے رہتے ہیں, اور وہ لوگ اپنا جو شعبہ ہے اسکولوں کے اندر اس چیز کو داخل کر رہے ہیں. دیوبندی وہابی, آپ جا کر کے دیکھ لیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں کیا حال ہے, وہاں پر آپ کو دیوبندی وہابی جماعتی یہ بہت ملیں گے, اور بڑے بڑے پروفیسرز ملیں گے جو دیوبندی وہابی ہوں گے. اب بچہ کیا سوچتا ہے, جب اس لائن میں آ گیا ہوں تو اس کی بات ماننے میں کیا جا رہا ہے, وہیں سے اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے اپنے دین کے ارکان سکھائیں, مذہب اسلام کے ارکان سکھائیں, اور اسے یہ بتائیں کہ بیٹا علم دین ہی ہے جو یہاں بھی تمہیں بچا سکتا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں بچا سکتا ہے. اچھا, اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے تمہارے لیے کہ جب بچے علم دین سیکھیں گے, قرآن سیکھیں گے, تو وہ ضرور یہ آیت پڑھیں گے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اپنی عبادت کے بعد یہ نہیں فرمایا اپنی عبادت کے بعد کہ میری عبادت کے بعد یہ کام کرو, پتیلے بناؤ, جلوس نکالو, جلسے کرو, بلکہ اپنی عبادت کے بعد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. السلام علیکم. ہاں, فائدہ کیا تھا دوا. 74 کلو کی تھی, اب 70 کلو ہوں. فائدہ کیا ہے, پہلے سے دبلی بھی ہو گئی ہوں, پیٹ بھی اندر چلا گیا ہے. دوا فائدہ کیا ہے, لیکن وہی 1 مہینہ ہم نے دوا کیا ہے پورا, لیکن 4 کلو گھٹی ہوں. فائدہ کیا ہے ہم کو. ہلو ہلو ہلو. ہاں ہلو. ہاں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جان ہے جی اینول بھائی. ہاں ہاں. اچھا جی یہ مولانا جو بیٹھے ہیں تو ہم بول رہے ہیں نا جی کہ نبی سے انکار کرنے والا تو ان لوگ کا غسل نہیں ہوتا ہے. کیا چیز؟ جیسے جو نبی سے انکار کرے ہاں. غسل ہوتا ہے اس کا نہیں ہوتا. ہم بول رہے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے. کتنوں نہانے سے پاک ہوگا. جب اس کا ایمان ہی نہ ہے تو وہ پاک اور ناپاک کی تو الگ بات ہے. ایک میت میں ہم لوگ گئے, ٹھیک ہے, تو وہاں بھی لوگ وہاں پر دعا کے سمے بھاگ گیا تھا. ٹھیک ہے, دعا کے ٹائم ہاں وہی بول رہے ہیں ہم لوگ ناپاک رہتا ہے, اسی لیے ہم لوگ شامل نہیں ہوتا ہے دعا میں. جی لیجیے بات کیجیے. مولانا سمجھ میں نہیں کرتے ہمارا بات. کون ہے؟ السلام علیکم. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حبیب اللہ. محمد حبیب اللہ قاسمی. اچھا اچھا, کہاں آپ بھی جھارکھنڈ سے ہی ہیں کیا؟ وہاں سے ہم تو بازار میں ہے, بازار میں علی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اچھا, حبیب اللہ قاسمی. جی اچھا, تو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں کیا آپ؟ جی ہاں. ارے واہ, تو کیا افتاء کیا تھا وہاں سے یا مولویت؟ ہاں, افتاء کیا تھا وہاں سے یا مولویت کی تھی؟ عالم فاضل کیے اور حفظ بھی کیے اللہ کے فضل سے. اچھا اچھا تعطیل بھی ہیں. اچھا اچھا, وہاں بہت لکھے بھی تھے, کتابت بھی کیے تھے بہت. اچھا کتابت بھی کی ہے آپ نے؟ ہاں, وہاں رہ کر کے میں نے پریس میں دیتے تھے لکھ کر کے کھانا وغیرہ, وہ لوگ فرمائش کرتا تھا تو لکھ کر. اچھا 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 اچھا, ماشاء اللہ کافی علم والے ہیں آپ. جی, جس کے بارے تو ہاں حضور سے محبت کرتے ہوں گے, اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہوگا. بالکل, کیسے نہیں. اللہ کا خوف نہیں ہوگا, حضور کے محبت نہیں ہوگی تو انسان کہاں ہے. جی 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 جی. اور
ایمان سے خالی ہو جائیں گے. جی جی ماشاء اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, بہت اچھا لگا مجھے سن کر. تو فضائل اعمال بھی پڑھا ہوگا پھر تو آپ نے؟ ارے بات کرنے کے عالم سے بات کرنے, آپ کو جہالت والی بات مت نہ کیجیے. ہاں ادھر باتوں میں نہ لگے ہیں آپ, ادھر منع کر دیں. ہاں ادھر منع کر دیں آپ, کوئی دقت نہیں. بات کو بہت سنیے, جہالت والی بات مت کیجیے. مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ عینی صاحب جو ہے نا, ہاں ادھر ابھی خاموش کر دیجیے سب کو. یہ ہے ہم آپ سے ایک عالم سے بات کر رہے ہیں تو عالم سے بات کرنے دیجیے ہم کو. بہرحال عالم میں بھی نہیں ہوں, میں بھی ایک طالب علم ہوں. عالم کچھ نہیں ہے, عالم تو کہیں گے آپ کو علم اللہ نے دیا ہے تو کیا عالم نہیں کہیں گے. ہلو تو ارے اینول بھائی ذرا بات کرنے دیجیے. سنیے نا, ایک سیکنڈ سے ہم بول رہے ہیں نا جی, یہ مولانا بات نکالے صبح صبح کی. ہاں لوہردگا میں جو ہوتا ہے عرس بابا دکھا صاحب ہے نا, وہاں جاتا ہے آدمی شرک کرتا ہے بولتے ہیں. چلیے وہ بعد میں بات ہو جائے گی. ابھی میری کوئی بات ہو رہی تھی, آپ شور شرابہ نہ کریں, میں بات کر رہا ہوں. جی ہاں ہاں بولیے. جی جی صاحب, بس الحمدللہ سب بڑھیا ہیں. تو میں بول رہا تھا آپ سے, ہاں ہاں ٹھیک ہے. آپ نے سنتے رہتے ہیں بہت بڑا آپ کا, جو آپ جو مقابلہ کرتے ہیں نا ہاں اوروں سے. اچھا سنتے ہیں, لیکن ہاں بہت سنتے ہیں. اچھا آپ کا ویڈیو آتا ہے ہاں آپ ہی کا نمبر پہ. اچھا اور یہ انل بھی بھیج دیتے ہیں اور آتا بھی ہے. اچھا تو میں یہ معلوم کر رہا تھا کہ آپ نے فضائل اعمال بھی پڑھا ہوگا. فضائل اعمال دیکھیے, فضائل اعمال کو درس میں تھوڑی پڑھائی جاتی ہے, وہ تو باہر میں ہے. ہاں مطلب وہ اصل میں تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں, مولوی زکریا, تو ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کو بھی بڑا معتبر مانتے ہیں لوگ, اور ہر ایک جماعتی کی بغل میں دبا میں نے دیکھا ہے, جو بھی امیر ہوتا ہے جماعت میں لے کے جاتے ہیں. ہم لوگ معتبر نہیں مانتے ہیں, ان کی کوئی کتاب کو معتبر نہیں مانتے ہیں. جو چیز حدیث ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے, بس اس کو ہم معتبر مانتے ہیں. لکھنے والا کوئی بھی رہے, سمجھ گئے نا. جیسا شیخ سعدی رحمٰن نے کہا کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال, کہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے اس کو دیکھو, اور کون کہنے والا ہے اس کو مت دیکھو. اس لیے ہم لوگ بولنے والا یا لکھنے والا تو ہم لوگ نہیں دیکھتے وہ کیا کون ہے. جو ہے قرآن حدیث کی بات ہے, اس کو ہم سر آنکھوں پہ رکھیں گے. ماشاء اللہ, چلیے یہ بات بھی بڑی اچھی کہی آپ نے. ہوگا الگ ہوگا تو اس کو ہم جو ہے بالکل بالائے طاق رکھ دیں گے. ماشاء اللہ, بڑا اچھا لگا مجھے آپ کے منہ سے یہ بات سن کر کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. تو جیسے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جو ہے تسلیم کرتے ہیں نا؟ علم غیب, جی علم غیب جو ہے نا جی, اس سے مختلف قسم کی باتیں ہیں. آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں جی کہ اللہ کی جو مخصوص صفتیں ہیں ان کو کیا ہے, اس کو بتائیے تھوڑا سا. اس میں سے یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے تو ہم کو بتا دیں. ہاں ہے اللہ رب العزت کے لیے ہے. جی صفت ہے کہ نہیں اللہ کی, بے شک ہے نا. جی تو اللہ کے علاوہ اگر دوسرے کے اندر بھی ہم شامل کریں گے, حاضر ناظر مانیں گے, تو اللہ کے برابر ہو جائے گا نا. اللہ سے درجہ تو کم نہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جو ہے اللہ کے بعد ہی اندر ہوتا ہے. نہیں ہے نا, آپ نے سمجھنے میں تھوڑی سی نا تو اسی لیے غلطی کر دی, مسٹیک ہو گئی آپ کو سمجھنے میں. حاضر ناظر کہتے ہیں یا علم غیب کے اندر شامل کرتے ہیں تو اللہ کے برابر ہو جائے گا نا. تو پھر جو ہے اس میں غلط ہو جائے گا. اس لیے ہمارا کہنا ہے کہ اللہ کے بعد آئے گا. جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے نا, صرف ان کا پردہ بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ, ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ احد جو ہے احمد کے شکل میں
नमूदार हुआ, यानी नींद का पर्दा लेकर के। इसका मतलब हुआ कि अल्लाह ही वो आ गए, अल्लाह ही मोहम्मद बन के आ गए। उनका कहने का मतलब ये हुआ। किसके कहने का मतलब ये है? नहीं, हमारा ये कहना है कि अल्लाह के बाद ही ना उनका नंबर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद सबसे आला और अफजल अगर किसी का मकाम है तो हमारे नबी की जात है। अल्लाह के बाद देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप कहाँ मतलब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, उतना मतलब जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप इल्म गैब तस्लीम करते हैं या नहीं करते हैं? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप इल्म गैब तस्लीम करते हैं या नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को गैब का इल्म अता किया है। हाँ, अता किया है, इससे कहीं तस्लीम करेंगे। माशाअल्लाह, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तमाम नबियों से ज्यादा अता फरमाया, ये भी है इल्म गैब ना, है ना? इल्म या इल्म गैब? हेलो, हाँ बोलिए ना। इल्म या इल्म गैब? इल्म गैब की बात कर रहे हैं। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने तस्लीम कर लिया, वरना बहुत से लोग जो है ना इल्म गैब को तस्लीम ही नहीं करते हैं और इनकार कर देते हैं। जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि इल्म गैब अल्लाह पाक की खास सिफत है कि नहीं, तो हाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास सिफत है, कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इस खास सिफत में से, ये खास इल्म गैब में से अगर अपने किसी महबूब को बताना चाहे तो बता सकता है। बिल्कुल एकदम, कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एक बात और है जी, हाजिर नाजिर की बात। हाजिर नाजिर, अच्छा जो अल्लाह की सिफत है, हाँ। वो अगर किसी पैगंबर या किसी बुजुर्ग पर या किसी अंबिया पर साबित करेंगे तो ये भी तो उसी में से दाखिल हो जाएंगे ना। काय में से? हाजिर नाजिर जो है कौन है? अल्लाह ताला है, हर जगह हाजिर, हर जगह से देखने वाला वही ना। अल्लाह ताला को हर जगह नहीं कह सकते, ये आप बोलने में मिस्टेक कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। हर जगह में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि जगह से अल्लाह तबारक व तआला पाक है। जगह की बात इसीलिए तो कह रहा है कि उसके तमाम दुनिया की हर कहीं पर भी आप नहीं है तो बात नहीं कह सकते है ना। नहीं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह हाजिर और नाजिर है, तो जगह में कैद करना ये दुरुस्त अल्फाज नहीं है। तुमने सही जो कहा है ना, हर जगह अल्लाह ताला मौजूद है, इसके क्या आप तब्दील? अल्लाह रब्बुल इज्जत जगह से तो पाक है ना, बिल्कुल जगह से पाक। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म हर एक चीज को अपने घेरे में लिए हुए है। हाँ बिल्कुल, ऐसा आप बोल सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म हर एक शय को, हर एक चीज को, जर्रे को कायनात के अपने इल्म में घेरे हुए है, ऐसा बोल सकते हैं आप, है ना? हाँ, अब रही ये बात, जैसे आपने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा अगर किसी और को हमने हाजिर और नाजिर माना तो ये शिर्क या कुफ्र या अल्लाह के साथ आ रहा है, मुताबिक दाखिल हो रहा है। अच्छा, तो यानी अगर ये क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा सा खुल के मुझे समझा दें। क्या चीज को? मतलब क्या, अगर हमने जैसे किसी अल्लाह के बंदे को अगर हाजिर और नाजिर माना, यानी मान लीजिए हमने हुजूर को ही माना। हाँ तो ठीक है, सुनिए एक बार, ये वो पूछ रहे हैं ना, उसी को हम बोल रहे हैं, जो हम पूछ रहे हैं आपसे। अरे नहीं, आप इतने बड़े मदरसे से पढ़े हुए हैं और आप मतलब मुझसे थोड़ी सीखेंगे, आप तो कातिब हैं, किताबें भी लिखी हुई हैं आपने जनाब। किताबें तो लिखे हैं बहुत, लेकिन कहने का मतलब ये है ना जी कि ये वक्त था पढ़ने का दौर में अलग था, अभी पढ़ने का दौर खत्म हो गया ना। 83 की फरागत है, आज का नहीं है जी, लगभग 40 बरस हो चुका है। हाँ, आज का जिस वक्त इंदिरा गांधी मरी थी ना, उस वक्त में समझिए कि 84 में वो डेथ की है ना जी, 84 में हमने हिफ्ज किया था जी, 5.5 महीना लगा था मुकम्मल हिफ्ज करने में, और उसके बाद हम राजस्थान चले गए थे जयपुर इलाका में। हाँ, जयपुर खाली डिस्ट्रिक्ट रोहट जगह का नाम है जहाँ पर हम पढ़ा रहे थे। हाँ, मगर बात कुछ खुल के क्लियर नहीं हो पा रही है आपकी तरफ से, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये हम पूछना मकसद ये है कि अल्लाह की जो सिफत मखसूस है, हाँ, वो कौन कौन सा है जिसके अंदर दुनिया का कोई आदमी शरीक ना हो? ये सिफत मखसूस को बताइए कि कितने हैं अल्लाह ताला के?
اور उनमें से अगर हम कहते हैं कि इंसान के अंदर भी शामिल कर देते हैं, जैसे इल्म गैब का जो है ये मखसूस है अल्लाह का सिफत है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला के लिए तो हर एक चीज ही मखसूस है ना, सब चीज खास है, मगर कुछ खास चीजें ऐसी हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को अता की हैं। हाँ किया है, बिल्कुल, इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं। तो फिर आप यही तो मिस्टेक कर रहे हैं, आप यही तो समझने में गलती कर रहे हैं। हाँ बोलिए क्या? हाँ, आप यही तो समझने में मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं आप। हाँ बताइए क्या चीज? आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाजिर और नाजिर का इनकार करके या किसी और नबी के लिए हाजिर और नाजिर का इनकार करके आपने गलती की और उसको ये समझा कि अगर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी हाजिर और नाजिर माने और रसूलुल्लाह को भी हाजिर और नाजिर माने तो ये तो मतलब मुशाबे हो रही है। हटियो बेटा, है ना? तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से समझे वो हमारे अच्छे और बुरे अमाल को जानते हैं। अभी भी हमारे नबी, मैं क्लियर करके बता दूं आपको, हमारे नबी हमारे अच्छे और बुरे अमाल की खबर रखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से। किस वक्त में? अभी की उसी वक्त जब आप मौजूद थे उस वक्त की बात है क्या? अभी की कह रहा हूँ, ये जो हम बात कर रहे हैं ना इसका भी इल्म हमारे नबी को है। अभी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, ये हमारा सवाल ये है जी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है हर जुमेरात और पीर के दिन जो फरिश्ते बंदों के अमाल को लिया पहुंचाते हैं आपके कब्र अतहर पर जी, तो क्यों पहुंचाते हैं वो फरिश्ते? इसी तरीके से दरूद सलाम का मुतय्यन है, बहुत सारे फरिश्ते जो दरूद सलाम पहुंचाने के लिए अल्लाह ने मुतय्यन कर रखा फरिश्तों को, वो फिर क्यों मुतय्यन कर रखा है अल्लाह ने? फिर इसके अलावा जो इतनी कुरान जो नाज़िल हुई 23 साल जो लग गया, 23 साल की क्या जरूरत है जिब्रील सलाम के आने जाने का? फिर आप गारे हेरा के अंदर रह करके क्यों उतनी तकलीफ झेले? इसी तरीके से आपको बहुत सारे जज्बात में जो है आपको शिकस्त हुई है, बहुत जगह जो है आपको जो है जंदान मुबारक शहीद हुए गज़वा वहद में, और इसी तरीके से गज़वा हुनैन के अंदर साहबे किराम जो है शहादत हासिल किया। ये तमाम चीजें आपको जो है नजर नहीं आ रही है, देखने चाहिए ना कि किस तरीके से क्यों ऐसा हुआ। अल्लाह ताला को दिखाना मकसद था, और एक जगह नहीं कुरान में कई जगह तो कहा है कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नकुम इलैहि। इस तरीके से जो है कई जगह अल्लाह ने फरमाया कि हम तुम्हारी मिस्ल है, लेकिन फर्क इतने है कि हमारी तरफ अल्लाह ने वही किया है और तुम लोग तरफ वही नहीं आती है। तो ये सारी बातें जो है आपके सामने नजर आता है कि अगर ऐसा होता, नजायज मालूम होता, इसी तरीके से आप हाजिर नाजिर होते तो इतने फरिश्तों को अल्लाह ताला क्यों मुतय्यन किए हैं? अब देखिए आपने यहाँ कई चीजें कर दी, इल्म गैब पर भी घुमा के ले गए और भी बहुत सारी बातें घुमाई। अब मैं किस बात का जवाब दूं? आपने मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया। बात चल रही थी हाजिर और नाजिर की, हाजिर नाजिर, और आपने एक मिनट, आपने बहुत सारी बातें कही, तो इसमें मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि आपने कहा कि अगर हुजूर को इल्म गैब होता तो ये होता वो होता, यानी हुजूर को इल्म गैब भी आप तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं अभी इस आपके जुमले के मुताबिक। देखिए सुनिए ना, इल्म गैब की जरूरत जिस वक्त में थी अल्लाह ने अता किया। अच्छा, इस तरीके से जहर आपने नोश फरमाया, ये पता है आपको? उस वक्त वो सब हिकमतें हैं, वो सब हिकमतें होती हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये हिकमत इसीलिए है कि अल्लाह को। अच्छा एक मिनट, बंदा है और हिकमतें हैं, सुनिए तो वो सब हिकमतें हैं। तो इसीलिए बता रहा हूं, वो सब हिकमतें हैं। और हुजूर ने उसी वक्त मना फरमा दिया था कि अभी नहीं 3 साल बाद, अभी नहीं 3 साल बाद। और जो सहाबी रसूल थे वो उसी वक्त जो है विसाल कर गए थे, इंतकाल कर गए थे, पर्दा कर गए थे, है ना? मालूम है ना? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।
देखिए बीच बीच में जैसे मैंने आपकी बात को सुना तसल्ली से, सुकून से, तो इसी तरह अगर आप मेरी बात को सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आप खामोश रहिए ना, बोलने की बीमारी होती है आप लोगों को यार। हमसे भी तो कुछ सुने ना यार। आप तो समझदार आदमी है, बड़े आलिम है और ज़ईफ मतलब बुजुर्ग हैं, बुर्दवार इंसान है। मैं बड़े इत्मीनान के साथ आपसे बात करना चाहता हूँ। गलत तो कोई बात बोल रहे हैं। आप कलमा पढ़ के हमारे नबी का और हमारे नबी की शान व अज़मत को घटाते हैं। हम अपने नबी के कमाल को बयान कर रहे हैं और आप हमारे नबी के कमाल को घटा रहे हैं, है ना? देखिए शान को घटाइएगा ना। देखिए बीच बीच में बोलने वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता। शान को घटा के बात नहीं कीजिए मेरे पास, तो हम उस बातें नहीं करेंगे। फिर तो तुम्हारे बस की बात भी नहीं ना मौलवी साहब, तुम्हारे बस की बात नहीं है जो तुम इस गुनहगार के किसी भी सवाल का जवाब दे सको। अब आपने ये कहा था कि हुजूर के पास सहाबा, हुजूर के पास जो है फरिश्ते आते थे हमारे अमाल लेके, वो क्यों जाते हैं? तो ये हुजूर का एक मकाम है, हुजूर की ये शान व अज़मत है, ठीक है? एक मिनट रुकिए ना। क्यों? मेरे मोबाइल में बात कीजिए ना थोड़ा सा जी। अरे आप मेरे नंबर पे बात करिए, हम लगा रहे हैं। चलिए आपके नंबर से भी बात करेंगे, अभी करते हैं आपके नंबर से भी बात। आपका नंबर आप मुझे दे दीजिएगा। नहीं उसमें नहीं, रिकॉर्डिंग हम सुनेंगे ना जी। रिकॉर्डिंग वहाँ नहीं हो रहा ना, तो रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा ना आपको। रहिए। हाँ रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा आपको, है ना? नहीं ये वाला रिकॉर्डिंग। अब जैसे एक मिनट, जैसे आपने कहा कि हुजूर हाजिर और नाजिर नहीं है, हाजिर और नाजिर का मतलब क्या होता है थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा। हाँ बस इसी को समझना है जी। तो समझ लीजिए। हाजिर के क्या माना होता है कि हर जगह, हर सिमत, हर वक्त मौजूद होना। हाजिर के माने ये हुआ। ये तो तारीफ नहीं है कि हर जगह, हर वक्त, हर सिमत हाजिर रहना, इसका तो ये मतलब वो नहीं है। किसने कहा है, हमारे किस आलिम ने ये तारीफ की है कि हर वक्त हर जगह हुजूर मौजूद हैं? ऐसी तारीफ किसने की है? इसको हाजिर नाजिर कहते हैं। नाजिर के क्या माने है? नाजिर के क्या माने हुआ? नाजिर कौन फेल है? नाजिर सुनने के लिए आता है। नाजिर जो फेल ये ऐसा है कि हर जगह से समाअत फरमा रहे हैं, हमारे अमाल को जो है हुजूर देख भी रहे हैं, हमें मुलाहिजा भी फरमा रहे हैं, और मान लीजिए हम यहाँ से हुजूर पर दुरूद पढ़ रहे हैं दिल से, उस हमारे दुरूद को हुजूर सुन भी रहे हैं, तो फिर समाअत फरमा रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात। अब अगर हुजूर मान लीजिए कहीं हाजिर नहीं हो सकते, है ना, यही तो इनकार है ना, हुजूर हाजिर और नाजिर नहीं है। अगर हाजिर और नाजिर हुजूर नहीं है तो अच्छा एक और चीज, जैसे आप के हिसाब से और बज़ाहिर हुजूर इस दुनिया से विसाल कर गए, पर्दा कर गए, है ना, अपनी हाँ बज़ाहिर कब्र मुबारक में आराम फरमा रहे हैं, ठीक। क्या अब अगर हुजूर कहीं आना जाना चाहें तो क्या आ जा सकते हैं या नहीं? नहीं। आप क्या विचार है जी? आपका क्या राय है? चलिए मेरी राय तो बाद में मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। जब हुजूर नहीं आ जा सकते तो फिर एक मिनट कोई बात नहीं, आप हैंड फ्री कर दें उधर, सुनते रहेंगे वो भी। जब हुजूर नहीं आ जा सकते तो हुजूर का कोई उम्मती आ जा सकता है जो इंतकाल कर गया? नहीं, इंतकाल किए हुए नहीं आ जा सकते। नहीं आ जा सकता ना। हमारा ये है, आप अपना बताइए। जी जी अभी सब कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा तो मैं आपको आपके एक घर का हवाला देता हूँ। मौलवी कासिम ननोतवी साहब मदरसा दारुल उलूम देवबंद लड़ाई मिटाने के लिए पहुंचे थे। लड़ाई लड़ाई मिटाने गए। अच्छा ठीक, मतलब लड़ाई खत्म करने, झगड़ा हो गया था मदरसा दारुल उलूम देवबंद में। अच्छा ठीक। हाँ, तो मौलवी कासिम ननोतवी अपनी कब्र से उठ के मदरसा दारुल उलूम देवबंद गए और वहां जाके जो है समझाया, और मौलाना रफीउद्दीन को भी बोला, कहा कि उसको कह दो कि वो इस झगड़े में ना पड़े। अच्छा। हाँ,
اور پتہ ہے جب وہ مطلب جس وقت گئے تھے وہ موسم کیا تھا؟ سردی کا موسم تھا. اچھا اچھا سرد ٹھنڈی کا موسم تھا. مگر جس کے کمرے میں بھرے دیکھتے ہی اس کو پسینہ آ گیا اور اس کا جو مطلب لحاف وغیرہ جو بھی تھا روئی کا لبادہ وہ تر ہو گیا تھا پسینے سے. گھبرا گیا تھا وہ دیکھ کے ایک دم سے یہ کہاں سے مردہ آ گیا. مطلب یہ لفظ میں نے استعمال کیا اپنی طرف سے, مطلب اس میں ایسا نہیں لکھا ہے کہ مردہ آ گیا. بول رہے کوئی دقت نہیں ہے, بول رہے ہیں نا تربتر کی وجہ سے میں بول رہا ہوں کہ وہ گھبرا گیا. ہاں ٹھیک. تو بتائیے جب حضور نہیں آ جا سکتے تو آپ کے مولانا قاسم نانوتوی مدرسہ دارالعلوم دیوبند کیسے پہنچ گئے, اور انہیں کس نے خبر دی کہ مدرسے میں جھگڑا ہو گیا؟ یہاں کئی ساری باتیں یہاں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ انہیں پتا کیسے چلا, کیا انہیں علم غیب ہے؟ دوسرے جب انتقال کیا ہوا انسان, ٹھیک ہے, وصال شدہ, جب نبی نہیں آ سکتا جو پردہ کر گئے انتقال کر گئے اس دنیا سے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ ایک میں کیا بولوں اور کیا نہ بولوں, چلیے سیدھے الفاظوں میں یہی کہتا ہوں کہ جب امتی ایک منٹ عالم کہیے یا ایک بندہ کہیے, ایک عالم کہیے یا ایک بندہ کہیے, ایک امتی کہیے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں بہرحال یہ بات ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ یہ بات کب کی ہے, کون سن کی بات ہے؟ ارے یار کیا مجھ سے سن پوچھے گا؟ انہوں نے کتاب میں سن لکھی نہیں ہے, سن کہاں لکھی ہے؟ اور یہ کتاب ہے ایک منٹ ہونے کے بعد کا واقعہ ہے نا. ہاں انتقال کے بعد کا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے مرنے کے بعد کا ہے. سنیے نا, بظاہر اپنے جسم کے ساتھ وہ آئے تھے. ہاں جسم کے ساتھ, جذب انصری کے ساتھ. خواب میں نہیں بھیا, جذب انصری کے ساتھ, جسم کے ساتھ. اچھا تو وہ کون کتاب میں ہے؟ حکایات اولیاء. حکایات اولیاء جی ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیں گے. میں ابھی بھیج دوں, ابھی بھیج دوں ہے آپ کے پاس؟ ارے یار میں کوئی غلط تھوڑی بولتا ہوں, میں جو بھی بات کہتا ہوں بالکل پختہ ثبوت کے ساتھ, پورے صفحہ کے ساتھ. تو ان کا چھوٹا والا موبائل نہیں ہے, اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ میرا والا میں کرنے کے لیے تو نہیں لیں گے. اچھا لکھے بھیجایا تھا اولیاء. ہاں تو میں سب کچھ بھیج دوں گا, سب کچھ بھیج دوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. میرا نمبر پہ پتا ہوگا نا آپ کو؟ ہاں بالکل آپ کے نمبر, ہاں آپ کے نمبر پہ بھیج دوں گا میں. 73 19 70 94 77 جو نمبر ہے میرا ہے. ہاں ٹھیک ہے, سب آپ کے نمبر پہ بھیج دوں گا میں یہ. اچھا ایک اور دوسری بات, جب حضور کہیں نہیں آ جا سکتے تو پھر مدرسہ دارالعلوم دیوبند مطلب کیسے چلے گئے حساب لینے کے لیے حضور؟ اچھا, اور وہ سب باتیں جو ہے نا, سنیے ایک منٹ, کہیں پر جس میں اطہری کے ساتھ, جس میں انصری کے ساتھ واقعہ نہیں ہے, یہ خوابوں کی بات ہے. وہ خواب, ہاں وہ خواب کی بات ہے, تو اس خواب کی بات پر اطمینان کیسے کر لیا؟ میں تو واقعہ ایسے ہوا تھا کہ یہ دیوبند کے جو بڑے بڑے مطلب لوگ تھے نا, مولوی تھے, یہ مدرسے کا پیسہ ہضم کر گئے تھے, کھا گئے تھے, بےایمانی کر گئے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ حساب دیجئے, تو اب ان کے پاس تو حساب کتاب تھا ہی نہیں, سب کھا گئے تھے. تو جھوٹا خواب دیکھا, جھوٹا خواب گڑھا کہ ہمارے خواب میں حضور آئے ہیں اور حضور نے ہم سے کہا ہے کہ حساب دو. تو انہوں نے جو ہے ایک ایک پائی کا حساب دے دیا. ہاں تو یہ بات تو میں نے کوئی جگہ ہم نہیں دیکھے ہیں, لیکن اتنی بات تو ہم کو معلوم ہے کہ آپ کا جو نوزرہ جو دارالعلوم میں بنا ہے سو, اور جو آپ کا جنازہ جو پڑھایا جاتا ہے وہ جگہ, یہ جو اور یہ ملسری کے کنواں, یہ تین چیز کا ثبوت جو ہے نا بہت ثبوت ہے, اس لیے اس کا جو ہے لوگ مانتا ہے اور کرتا بھی ہے, اور اس کا فضائل بھی ہے. اور نا ملسری والا کنواں تھا. تو اس طریقے سے میں نے آپ جس میں انصری کے ساتھ آ کر کے کہا ہو, ایسا کوئی پر لکھا ہوا تو نہیں دیکھا ہم نے. بس یہ خاموں کے اندر میں سمجھ نہیں پایا آپ کی یہ والی بات, کون سی والی کنواں, کون سا, کیا جس میں انصری کے ساتھ آ کر کے آپ نے نہیں, اس سے پہلے آپ نے کچھ کہا تھا. اس سے پہلے آپ نے کچھ کہا تھا کہ وہ تو مشہور ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے.
वो क्या बोले थे आप, किसके लिए? वो मुंसरी वाला कुआं जो है जिसका ताल्लुक आबे कौसर से है, आबे जमजम से है, समझ ये गए ना? कहाँ है, ये कहाँ है और किसके लिए है ये वाकया? ये वाकया आपको मोहल्ला जो है या कासिम नारती रहमतुल्लाह अलैह जो थे, अच्छा, उन्होंने इस कुएं से दूध पिला रहे थे, समझ गए? क्या पिला रहे थे? वहाँ वाले थे उन तमाम को पिलाया था, अच्छा, उसी कुएं से, समझ गए? अच्छा, तो अभी भी वो कुआं मौजूद है और उसमें जो है जब तक वो बाहयात थे तब तक वो पहचान करके ही दाखिला लिया करते थे। अच्छा, अब उनके जाने के बाद से जो है पहचानने का सिलसिला खत्म हो गया। जब तक जितना को पिलाया तो वो अपना पहचानते थे और उसी पहचान कर ही दाखिला लिया करते थे। नहीं, वो मुल्तरी वाला कुआं जो है अभी भी मौजूद है और वो कभी सूखा नहीं है। इसके अलावा जो है इस जगह जगह मुल्तरी के दरख्त भी है और उसी जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निशान दिया हुआ है उसी पर जनाजा करके पूरा देवबंद का सारे उसी में रख करके पढ़ाया जाता है। और नवदरा जो बना है, जो नवदरा बना है हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से जो निशानी दिए थे इसी निशानी पर नवदरा बनाया गया है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से, हाँ, इशारे से। अच्छा, तो यहाँ एक और आपने नई बात खड़ी कर दी और देवबंद के कोई भी हजरात इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादे विसाल इशारा कैसे कर दिया? और देवबंदी तो कहते हैं किताब तकवीतुल ईमान में लिखा है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी बात का इख्तियार नहीं, तो फिर ये हुजूर को इशारा करने का इख्तियार कैसे हो गया? देखिए, ख्वाबों की बात उन्होंने जिक्र किया हुआ है। देखिए आप हकीकत की बात को तस्लीम नहीं करते और ख्वाबों की बात तस्लीम कर लेते हैं, यही तो हमारे समझ में नहीं आता है कुछ भी। तो आप अपने हिस्ट्री के साथ आकर के बताया हो ऐसा तो कोई किताब में हम नहीं देखे हैं। किताब हिकायत औलिया लिखने वाले थानवी जी, इसको हम मंगाएंगे और इसको नजर सानी करेंगे, इसको देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आपकी बात करेंगे। जी। तो अभी तो और आगे बात रह गई है, कई सारी बातें हैं अभी आगे। हाँ, बोलिए ना। हाँ, एक और चीज देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक किताब यही है हिकायत औलिया और हिकायत नंबर 6 है। लिखते हैं इसमें, एक बार इरशाद फरमाया कि हजरत शाह वलीउल्लाह साहब जब मर्जुल मौत में मुब्तिला हुए और जिंदगी से पास हुए, है ना, जिंदगी से बतकाज़ा पास लिखा है इसमें। क्या मतलब होता है जिंदगी से? यानी जिंदगी कम ही बची होगी और अनकरीब बतकाज़ा बशरियत इन्होंने लिखा है आगे। बीमारी की हालत में ये कुछ कहना चाह रहे हैं, है ना? हाँ, तो लिखते हैं बतकाज़ा बशरियत, क्योंकि क्या लिखा है ये, सगर लिखा है, जने सोगर लिखा है, क्या लिखा है अल्लाह बेहतर जाने। ये सुन्नी का तरद्दुद, हाँ, सुन्नी का तरद्दुद था। उसी वक्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि तशरीफ लाए और फरमाते हैं कि तू काहे फिक्र करे। अच्छा, जैसा इस किताब में लिखा मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ। तू काहे फिक्र करे है, जैसे तेरी औलाद वैसे ही मेरी औलाद, है ना, जैसे तेरी औलाद वैसे ही मेरी। यानी हुजूर ने कहा ये तेरी औलाद मेरी ही औलाद है, ऐसा करके मतलब यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इत्मीनान हो गया, यानी हुजूर ने जब कहा ना तू काहे फिक्र करे है, जैसे तेरी औलाद वैसे ही मेरी, तो आपको इत्मीनान हो गया। शाह साहब की औलाद सब आलिम हुई और बड़े मर्तबों पर पहुंचे, समझे। जैसे भी साहिब फजलो कमाल हुए, जाहिर है आपके 4 साहबजादे हुए। अब उनकी औलाद में बजुज अब्दुस्सलाम गैर तालीम थे, है ना, गैर तालीम याफ्ता थे, यानी वो पढ़े लिखे नहीं थे शायद, और कोई भी नहीं, इन्होंने लिखा। तो अब ये बताइए
जब ये बीमार पड़ जाते हैं तो बतकाज़ा ये बशरियत इनको अपने बच्चों की फिक्र होती है ना, तो हुजूर तशरीफ ले आते हैं। जब हुजूर को इल्म गैब नहीं तो हुजूर को ये कैसे पता चला कि ये मेरा फला उम्मती जो है अपने बच्चों की फिक्र में है? ये गैब की बात है, ये दिल की बात है। हमारे दिल में जो खतरात गुजर रहे हैं उसको कोई नहीं जानता, अल्लाह जानता है। मगर ये तो रसूलुल्लाह के लिए इल्म गैब का ही इनकार करते हैं। तो जब रसूलुल्लाह के इल्म गैब का इनकार करते हैं तो फिर इनके दिल का राज कैसे जान लिया? अच्छा, है ना? एक किताब है, मेरी बात सुन लीजिए, हिकायत है औलिया है। अच्छा, और ये मनकुल, हाँ, ये तज़किरतुर रशीद में भी है। अच्छा, हाँ। ठीक। तो अब मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि इनके दिल में जो वसवसा गुजर रहा है, जो ख्याल गुजर रहा है, हुजूर ने कैसे जान लिया? और फिर हुजूर यहाँ कैसे आ गए कि तू काहे फिक्र करे है, जैसे तेरे औलाद वैसे मेरी। जब हुजूर ने ये कहा ना जैसे तेरी औलाद वैसे मेरी, तो अब इन्हें इत्मीनान हो गया। हुजूर के इल्म गैब को तस्लीम नहीं करते हैं, मगर यहाँ इस बात का इत्मीनान कर रहे हैं। क्या अब तो चलो हुजूर ने कह दिया, तो मैं जानना ये चाहता हूँ हुजूर को पता कैसे चला कि मेरा फला उम्मती जो है अपने बच्चों की फिक्र में पड़ा हुआ है और मर्जुल मौत में है, बीमारी में पड़ा हुआ है और मौत के करीब है? ये इल्म गैब की बात है कि नहीं? एक मिनट, आपके दिल में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ, मेरे दिल में क्या चल रहा है आप जानते हैं? नहीं ना? जी, अल्लाह तो जानता है ना? हाँ। अच्छा, रसूलुल्लाह जानते हैं आपके दिल में क्या खतरा गुजर रहा है, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, उसको नहीं कह सकता। अच्छा, उसको नहीं कह सकते। चलिए, बस यही कहलवाना चाह रहा था मैं। आप उसको नहीं कह सकते, मगर यहाँ आपके घर के बुजुर्ग अपने लिए ये बात लिख रहे हैं और बड़ी तसल्ली के साथ हिकायत। सुनिएगा जी। हाँ, तो बात यह है कि आज जो किताब में जो लिखा है कहते औलिया में, हाँ, तो उसमें क्या बोला है कि वो उनसरी के साथ आकर के उन्होंने कहा कि इसमें जैसे उनसरी का भी नहीं लिखा गया है और ना ख्वाब का लिखा गया है। बस उसमें यही ख्याल कीजिए उसको कि अपने मर्जुल मौत में वो उनका गुमान कहिए। हाँ, गुमान। हाँ, अरे भाई, या ख्वाब कहिए। नहीं, इन्होंने हुजूर को आते देखा है भाई। कह रहे हैं उसी वक्त जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि तशरीफ लाए और फरमाते हैं, तो हुजूर तशरीफ लाए ना, हुजूर तशरीफ लाए। एक मिनट, यहाँ को आपने भी ख्वाब में देखा होगा तशरीफ लाते हुए, और हम लोग भी देखे क्या हमारे यहाँ ख्वाब की बात ही नहीं बताई गई है। यहाँ देखिए, ख्वाब की बात ही नहीं बताई गई है। लिखते हैं पूरी हिकायत में, फिर से बताता हूँ। हिकायत नंबर 6, मतलब हिकायतें भी बदल देते हैं ये लोग, सफ़े भी चेंज करा देते हैं। ठीक है, जो मेरे पास है मैं उसका हवाला बता रहा हूँ, बाकी दूसरी किताब में किसी और जगह भी रद्द बदल कर सकते हैं। ठीक है, आप को हर दूसरी किताब में कहीं भी तलाश कर सकते हैं इसको, मगर इसमें हिकायत नंबर 6 है। लिखते हैं, एक बार इरशाद फरमाया कि हजरत शाह वलीउल्लाह साहब जब मर्जुल मौत में मुब्तला हुए और जिंदगी से पास हुए, तो बतकाज़ा बशरियत, चूंकि सुगर सुन्नी पता नहीं क्या लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे, बहरहाल है ना, देख लीजिएगा दूसरी किताब में, देख लीजिएगा ना साफ क्या है। इसको सुगरा कहिए या सगीर कहिए या कुछ भी कहिए, बहरहाल सुन्नी का तरद्दुद था। उसी वक्त जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि तशरीफ लाए और फरमाते हैं कि तू काहे फिक्र करे है। इसमें ख्वाब वाब का किसी का कोई जिक्र नहीं। अरे तशरीफ लाए, उन्होंने कहा मर्जुल मौत के वक्त में, है ना, तो ये तो जाहिर है कि आपने मैंने वहाँ आपके दिल में आया हो या ख्याल आया हो या आपने
सपना में देखा हो या जिस तरीके से आपको आऊंगा। तो इसमें कोई सपना उपना दिया नहीं है ना, सपना? हाँ, जाहिर तो नहीं किया गया है। हम तो जो पढ़ रहे हैं वही कहेंगे ना। हाँ ठीक है। हाँ, इस पर आप जो भी ख्याल कर सकते हैं आप। देखिए अब आप हमको कहेंगे ये ख्याल करें वो ख्याल करें, मतलब बात हमारी ये चल रही है, जब हुजूर इल्म गैब नहीं जानते, हुजूर हमारे दिल के हाल को नहीं जानते, हमारे दिल में क्या गुजर रहा है, क्या चल रहा है, फिर यहाँ कैसे मतलब जान लिया? मैं ये आपसे मालूम करना चाहता हूँ। मैं यही तो कहता हूँ, मेरे निकलने की वजह भी असल यही है कि देवबंदी हजरात बड़े मुनाफिक लोग हैं, बड़े गुमराह लोग हैं, बड़े बदअकीदे हैं। हमारे नबी के जिन जिन कमालों का इनकार करते हैं वही सारे कमाल अपने घर के बुजुर्गों के लिए सब तस्लीम कर लेते हैं। गलत मैं 15 साल से ज्यादा देवबंदियों में रहा हूँ, यही तो मेरे निकलने की वजह थी। तो सुनिए तब नाम बताएं, बोले बताइए। एक मिनट मिलता है। देखिए हम अपने ख्वाब के अंदर बात हम बताते हैं। जैसे हम अपने ख्वाब में देखा मेरे अब्बा हुजूर तशरीफ लाए। अच्छा ठीक। दरवाजे पे आए, फला बात बोल के चले गए। इस तरह से अब्बा आए तो हमारा आपसे कहने का मतलब है कि अब्बा को कैसे पता चल गया कि तुम बीमार है या तुम, ये तो सपना की बात है और ख्वाब की बात है। इसमें तो उनका आना या उनको मालूम होना, आप जानते हैं ना कि आलम बरज़ख और आलम दुनिया अलग अलग जगह है। तो आलम बरज़ख में जो चला गया उसका ताल्लुक आलम दुनिया से खत्म हो गया और आलम दुनिया वाला का ताल्लुक आलम बरज़ख से नहीं है। हाँ, जो नेक लोग होंगे, जो औलिया किराम है, वो बुजुर्गान दीन और अल्लाह वाले जो है, उन लोगों का ताल्लुक दुनिया से रहता है। बाकी अच्छा रहता है। चलिए एक और वाकया सुना देता हूँ। चलिए, तो मैं यही तो समझाना चाहता हूँ यार, मैं यही तो समझाना चाहता हूँ, जितने अल्लाह के वली हैं, जितने अल्लाह के नबी हैं। हाँ, यही तो बात है, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ और तमाम देवबंदियत को समझाना चाहता हूँ मैं। हम तो हुजूर के उम्मती हैं, तो हमारी फिक्र हुजूर नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हाँ सुनिए, अब एक और वाकया सुनिए। आपने कहा कि ये ख्वाब का वाकया है। चलिए एक और थानवी जी के घर का एक हवाला बता देता हूँ। शहादत के बाद एक अजीब वाकया हुआ। शब के वक्त अपने घर मिसले जिंदा के तशरीफ लाए, अपने घर वालों को मिठाई लाकर दी और फरमाया कि अगर तुम किसी से जाहिर न करोगी तो इसी तरह रोज आया करेंगे। लेकिन उनके घर के लोगों को ये अंदेशा हुआ कि घर वाले जब बच्चों को मिठाई खाते देखेंगे तो मालूम नहीं क्या शुबा करें, इसलिए जाहिर कर दिया और फिर आप तशरीफ नहीं लाए। बात हमारी चल रही थी, हुजूर हाजिर नाजिर नहीं है, कहीं आ जा नहीं सकते, मगर ये थानवी जी के दादा हैं, कब्र से मिठाई लाए हैं। पता नहीं कब्रिस्तान में मिठाई की दुकान थी या पहले मार्केट गए थे दुनिया की, और वादा कर रहे हैं कि मैं रोज आऊंगा अगर आप किसी से जाहिर ना करो। जी, ये किसकी नाम है? उसी में है, अशरफ सवाने में है, ये अशरफ सवाने। अच्छा ठीक है, उसको भी देख लेंगे। जी 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 जी। तो ये तो समझ में आ रहा है, हमारे नबी के कमाल का इनकार करते हैं देवबंदी लोग और अपने घर के बुजुर्गों के लिए हर एक उस बात को तस्लीम कर लेते हैं जिसको करने का जहाँ पर ये है ना जगह गुंजाइश वहाँ कर सकता है, लेकिन आपका इहानत करके ये करेगा तो वो खुद ईमान से खारिज हो जाएगा ना। जी 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 जनाब, देखिए मैं यही कहता हूँ कि आपने अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का अभी इनकार किया था और कहा था कि अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा क्यों हुआ और ऐसा होता तो ऐसा क्यों हुआ। आपने जहर की बात कही, अगर इल्म गैब होता तो हुजूर जहर क्यों खाते। तो आपको कहीं ना कहीं से अगर कोई बात बोलता है ना तो ईमान से बाहर हो जाएगा ना। हाँ, तो आप ईमान से बाहर हैं ही पहले से ही, समझ लो, अगर आपने हुजूर के कमाल का इनकार किया है। नहीं, कमाल का इनकार कभी नहीं कर सकते हैं, अल्लाह का फजल है, ईमान इतना पक्का है हम लोग का ना, इंशाअल्लाह जर्रा बराबर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान में कोई साथी हो नहीं सकता और न कर सकते न हम मिलेंगे। चलिए तो मानिए कहिए कि हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की अता से इल्म गैब अल्लाह तबारक व तआला की अता से गैब का इल्म जानते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की अता से जहाँ हुजूर चाहें आ जा सकते हैं। कहिए। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। नहीं, देखिए आपने कहा कि मतलब हम मानते हैं और गुस्ताखी नहीं करते,
تو آپ ایک بار تو کم سے کم کہہ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں اللہ رب العزت کی عطا سے آ جا سکتے ہیں. ہاں بالکل ایک دم آ جا سکتے ہیں اللہ کے. مگر آپ اس سے پہلے تو نہیں کہہ رہے تھے نا؟ نہیں سب دن کہہ رہے ہیں. نہیں کہاں کہہ رہے تھے آپ نے تو منع ہی کیا تھا کہ کوئی قبر سے نہیں آ سکتا. یہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے منع کیا تھا نا کہ وصال شدہ انسان نہیں آ جا سکتا. کی بات نہیں ہے, ذرا برابر بھی نہیں ہے. اچھا چلیے آپ نے تسلیم کر لیا نا؟ ایک دو دن نہیں پڑے ہیں نا. اچھا جی جی جی. اتنا سال مسجد مدرسوں کے کٹائی میں کتنا فکر رکھ رہے ہیں دھوئی ہوا ہے. ہاں صحیح بات ہے. 60-70 سے ہم پڑھنا شروع کیے ہیں. جی 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 جی. وہ پیروں میں بھی گانٹھیں پڑ گئی ہوں گی. ہاں ہے نا, پیروں میں گانٹھیں بھی پڑ گئی ہوں گی وہ بیٹھتے بیٹھتے. نہیں ایسی بات نہیں. اور یہ مطلب ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو وہ نشان پڑ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے سر بعد میں بات کریں گے. نہیں تو ایک بار تو میرے سامنے کہہ دیجیے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عطا سے جہاں چاہے جا سکتے ہیں. یہ لوگ منع کرتے ہیں نا, ہم جیسے حضور کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عطا سے جہاں چاہیں وہ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں. اگر کہیں میلاد کی محفل ہو رہی ہے تو اگر کرم فرمانا چاہیں تو حضور صلی اللہ علیہ. ہلو ٹھیک ہے سر بعد میں بات کریں گے. آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں, کیا ہو گیا؟ نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے. دیکھیے ابھی تو آپ کے پاس بہت ٹائم تھا. صاحب کے آپ بھی آ گئے ہیں نا. چلیے خیر کوئی بات نہیں, میں آپ سے زبردستی نہیں کروں گا. خیر نہیں ہاں ٹھیک ہے سر. چلیے آپ نے مان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں اللہ کی عطا سے, ہے نا. چلیے ماشاء اللہ, ایک بار اپنے منہ سے کہہ دیں. سے اچھی تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا. اور عزیزان گرامی, آج کا جو یہ دور ہے نا, آج کا یہ دور پرفتن ہے, فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا. آقا کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ اے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں, فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں اس طریقے سے جیسے کہ بارش ہوتی ہے. تو بڑے فتنے ہیں آج کے دور میں, بڑے فتنے, اور بڑے فتنہ اگر پیدا ہو گئے. ہمارے مولانا نور الحسن صاحب بیٹھے ہوئے نیچے, انہیں اسٹیج پہ آنا چاہیے تھا. فتنہ گروں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے, فتنہ گروں سے یہ مقابلہ کرتے ہیں اور فتنہ گروں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو بڑے فتنے ہیں, بدعقیدگی کا فتنہ, الحاد کا فتنہ, بددینی کا فتنہ, بدعملی کا فتنہ, بے عملی کا فتنہ, بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. ہاں تو ان فتنوں کے دور میں اپنے بچوں کو پڑھانا یہ بھی ایک جہاد ہے. یہ بھی کیا ہے؟ جہاد ہے, جہاد.